بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان دنوں رفیع کو ایک کشادہ مکان خریدنے کی چاہ تھی۔ سسر صاحب کے فوت ہوتے ہی جیٹھ اور جٹھانی نے وہ رہائش کا فروخت کرنے کی ٹھان لی، جس میں سب اکٹھے رہا کرتے تھے۔ بڑے بھائی ہونے کے ناطے انہوں نے اپنی بات منوا لی اور مکان فروخت ہو گیا۔ جو حصہ ملا وہ اتنی رقم تھی کہ ہم اپنا علیحدہ گھر خرید سکتے تھے۔ اب مکان کی تلاش ایک بڑا مسئلہ تھی۔ برائے فروخت مکانات تو بہت دیکھے، لیکن موضوع رہائش کا ملنا بہت مشکل تھا۔ پراپرٹی ڈیلر نے کئی گھر دکھائے۔ ایک گھر رفیع کو پسند آ گیا۔ مجھے کہا کہ تم بھی چل کر دیکھ لو اور اماں کو بھی ساتھ لے چلو۔ جب پہلی بار میں اس مکان کو دیکھنے آئی تو میرا دل اس پہ نہ ٹھکا۔ یہ شہر سے کافی دور تھا اور بالکل الگ تھلگ بنا ہوا تھا۔ جتنا مکان شاندار اور مضبوط تھا، مالیت اس لحاظ سے کم تھی۔ میرے شوہر کو اس وجہ سے بھی اس کے خریدنے کی چاہ ہو رہی تھی۔ اتنے پیسوں میں ایسا اچھا گھر کہیں نہیں ملے گا۔ بولے ہاں تو اب کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا آبادی سے دور اتنی الگ تھلگ جگہ رہنے سے میرا تو جی گھبرائے گا۔ خوبصورت ہونے کے باوجود کچھ ہیبت سی ہے اس میں۔ بڑے بڑے کمرے، اونچی اونچی چھتیں، پتھریلی ٹھوس دیواریں، بڑی بڑی چوڑی چکلی سرخی مائل پتھروں سے بنی یہ چار دیواری، اس میں تو یہ خاموش اور وسیع و عریض صحن قبرستان ایسا لگ رہا ہے۔ وہاں رہنے کا مزہ تو ایسی ہی الگ تھلگ اور پرسکون جگہ میں ہے، اور شہر سے دوری کی کیا بات ہے۔ تم کون سا روز گھر سے نکلتی ہو؟ میرے پاس گاڑی ہے۔ میری ساس خاموش تھیں۔ شوہر کا راسخ ارادہ دیکھ کر میں بھی خاموش ہو رہی کہ یہ کرتے تو اپنی سی ہیں اور بندوق رکھ دیتے ہیں ہمارے کندھے پر۔ بس اسی قدر بولی بیٹا، خریدنے سے پہلے اس مکان کے ماضی کے بارے میں جان لینا، کیونکہ ہر عمارت کی اپنی تاریخ ہوتی ہے جو نئے آنے والے مکینوں کے مقدر پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔ ماں کی بات کا مان رکھتے ہوئے انہوں نے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھ لیا۔ پراپرٹی ڈیلر ہوشیار تھا، بولا صاحب یہ صرف مکان نہیں ہے، یہ حویلی ہے جو ایک امیر کبیر ہندو تاجر نے اپنی رہائش کے واسطے بنوائی تھی، لیکن یہ اس زمانے میں تعمیر ہوئی جب آزادی کی تحریک زور پکڑ رہی تھی۔ اس کے مالک کو یہاں رہنے کا موقع بہت کم ملا۔ بعد میں کسی صاحب حیثیت گھرانے کو جو ہجرت کر کے آئے کلیم میں مل گیا۔ نہ جانے کیا سبب ہوا، کچھ عرصے بعد وہ بھی اس کو فروخت کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد یہ 2 بار بک چکا ہے۔ شاید مکانیت زیادہ ہونے کے سبب لوگ اس کی دیکھ بھال کرنے سے کتراتے ہیں۔ میں بس اتنا ہی اس کے بارے میں جانتا ہوں۔ اس وقت مکان سستے میں یوں مل رہا ہے کہ موجودہ مالک کو روپے کی فوری ضرورت ہے۔ یہ لوگ بیرون ملک رہائش پذیر ہو رہی ہیں، ورنہ اس کی قیمت اس کی موجودہ قیمت سے دگنی ہے۔ پراپرٹی ڈیلر نے میرے میاں کا اشتیاق اور بڑھا دیا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں کل صبح تمہارے دفتر آ کے سودا طے کر لوں گا۔ مالک مکان کو 10 بجے بلوا لینا۔ اگلے دن رفیع نے جب مکان خرید لیا تو ہم نے سکھ کا سانس لیا، کیونکہ ہم ابھی تک جیٹھ کے گھر میں رہ رہے تھے۔ ان دنوں میں امید سے تھی۔ یہ ہمارا پہلا بچہ تھا اور رفیع چاہتے تھے کہ میں اپنے گھر سے اسے جنم دوں۔ تاہم میری ساس نے کہا کہ نئے گھر میں جو عرصے سے خالی پڑا ہے میں بہو کو نہ لے جاؤں گی، البتہ بچے کی پیدائش کے بعد ہم نئے مکان میں منتقل ہو جائیں گے۔ اماں جی نے میری والدہ کو فون کیا کہ آ کر بیٹی کو لے جاؤ۔ والدہ بھی یہی چاہتی تھیں کہ ایسے وقت میں ان کے پاس رہوں۔ وہ آ کر مجھے لے گئیں۔ ننھے فرحان کی پیدائش کے 20 روز بعد رفیع مجھے لینے آ گئے، اپنے گھر صاف ستھرا اور ٹھیک ٹھاک کروا کے۔ رفیع نے اس میں نیا فرنیچر ڈلوا دیا تھا، لیکن خود اماں کے ساتھ ابھی تک بڑے بھائی کے گھر میں رہ رہے تھے۔ چاہتے تھے کہ ہم سبھی ساتھ میں ہی نئے مکان میں شفٹ ہوں۔ ہمیں اس گھر میں آئے 3 دن ہی ہوئے ہوں گے کہ آدھی رات کو مجھے برآمدے میں کچھ ایسی آواز سنائی دی جیسے کوئی جانور کا گلا دبا رہا ہو۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کان لگائے مکمل خاموشی تھی۔ سوچا شاید میرا وہم ہے، مگر ڈر سا لگا۔ پاس ہی اماں جی سو رہی تھی، فرحان میری بغل میں سو رہا تھا اور رفیع ساتھ والے کمرے میں گہری نیند میں تھے۔ وہ خوشی میں جیٹھ کے بڑے لڑکے کو ساتھ لے آئے تھے، وہ بھی انہی کے برابر والے پلنگ پہ سو گیا۔ تمام رات نیند نہ آئی۔ صبح کہیں آنکھ لگ گئی تو فرحان اٹھ گیا۔ میں نے رات والی بات کا کسی سے ذکر نہ کیا کہ نیند میں شاید ڈر گئی تھی۔ دوسری رات بھی ایسا ہی ہوا۔ نصف شب میری آنکھ کھل گئی۔ مدھم سی عجیب و غریب آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ میں چونک کر اٹھ بیٹھی، فرحان کو اپنے قریب کر لیا۔
अम्मा जी बदस्तूर सोई हुई थीं। सामने की खिड़की खुली थी। गर्मियों के दिन थे। खिड़की में गर्चा लोहे की सलाखें नस्ब थीं, मगर जाली वगैरह नहीं थी। बाहर की ठंडक अंदर आ रही थी। मेरी नज़र खिड़की की तरफ गई। सामने सहन की चार दीवारी दिखाई दे रही थी। चांदनी रात थी। मुझे लगा कि दीवार पर बिल्लियां की तार में आगे पीछे चलते नीचे गिर गई हैं। आंखें बंद कर ली। लम्हा भर फिर दोबारा आंखें खोल कर देखा तो फिर वही मंजर नजर आया। झुरझरी आ गई। ये तो खौफ पैदा करने वाला मंजर था। अम्मा जी को जगाया। वो आंखें मलती उठ बैठी। क्या बात है मलिहा बेटी? अब मेरा मुंह ना खुलता था कि इनको बताती मैंने अभी अभी क्या देखा है। बस इतना कह पाई कि दीवार पे बिल्लियां चढ़ी थीं। आप ये खिड़की बंद कर दे, कहीं अंदर न आ जाए। बेटी, खिड़की बंद करने से गर्मी हो जाएगी। कहती हो तो कर देती हूँ, लेकिन सलाखें लगी हैं। बिल्ली इनसे अंदर नहीं आ सकती। तुम बेफिक्र होकर सो जाओ, मैं जाग रही हूँ। लगता है डर गई हो। मैं दबक कर सो गई और सुबह जब आँख खुली तो देखा कि अम्मा अब तक जाग रही थी। इतवार का दिन था। रफ़ी घर पर थे। मैंने कहा, आप जाकर अम्मी जान को ले आइए, वो फरहान को याद कर रही होगी। वो इसी वक्त चले गए और 2 घंटे बाद अम्मी के साथ नाश्ता भी एक बड़े से तोशादान में भर कर ले आए। हम सब ने नाश्ता किया। अम्मी ने किचन में जाकर चाय बनाई कि रफ़ी को मेरी वालिदा के हाथ की चाय बहुत पसंद थी। 2 रोज़ पलक झपकते ही गुजर गए। अम्मी जान की मौजूदगी में बेफिक्र होकर सो जाती और रात को फरहान को अपने पास लिटा लेती। 2 रोज़ बाद उन्होंने घर जाने की रट लगा ली। वहाँ वालिद और मेरी बहनों के अलावा बूढ़ी दादी भी थी। अम्मी को सभी की फिक्र सता रही थी। बहुत रोका मगर ना रुकी। तीसरे रोज़ रफ़ी ऑफिस जाते हुए इनको साथ ले गए कि इन्हें घर पहुँचाकर अपने दफ्तर जाऊँगा। अम्मी के जाते ही फिर खौफ ने मेरे दिल पे गलबा कर लिया। बेचैनी सी होने लगी। अम्मी जी किचन के कामों में मसरूफ़ थी और मैं फरहान को गोद में लिए बैठी थी। अभी तक पास पड़ोस से कोई औरत हमसे मिलने नहीं आई थी। हमारे घर के सामने एक चौड़ी सड़क थी, जिसके दूसरी तरफ कुछ मकानात कितार में बने हुए थे। जिस जानिब हमारा घर था, इतराफ में दोनों जानिब जगह खाली थी। अम्मी के जाने के बाद रात को फिर मुझे निस्फ शब के करीब वही आवाज़ सुनाई दी। आज आवाज़ कदरे साफ थी। मैं डर के उठ बैठी। अम्मी जी की आँख खुल गई। वो उठ के मेरे पलंग के पानी आ बैठी। क्या हुआ बेटी, डर गई हो क्या? अम्मा जी, साथ वाला जो कमरा खाली पड़ा है, क्या वहाँ बत्ती जल रही है? बोली, नहीं तो। क्या वहाँ बिल्लियाँ हैं? इनकी आवाज़ आई थी। इस सवाल पर हैरान होकर बोली, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी है? हाँ अम्मा जी, मैंने अजीब सी आवाज़ सुनी है। कहने लगी, अच्छा मैं देखती हूँ। लगता है तुम डर जाती हो। वहाँ जाकर उन्होंने बत्ती रोशन की, सब तरफ देखा, लेकिन इनको ऐसी वैसी बात दिखाई न दी। वापस आकर कहने लगी, मलिहा तुम्हें वहम हो गया है, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, कमरा खाली पड़ा है। फिर भी तुम्हारे वहम को दूर करने के लिए मैं कल से वहाँ नमाज पढ़ा करूँगी। अब रोज़ निफ्स शब को आँख खुल जाती। डर लगता तो फरहान को सीने से लगाए रखती। इतवार को सलीम भाई के साथ अम्मी जान आ गई। इन्हें बताया कि मुझे सामने वाले कमरे से वहशत आती है, कभी बिल्लियों की आवाज़ें आती हैं। अम्मा जी जाकर बत्ती जलाकर देखती हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता। बेटी, कल से ये जगह बदल लेना। कल से हम रफ़ी वाले कमरे में सोया करेंगे और इसको इस कमरे में सुला देंगे। नहीं अम्मी, इनसे तो इस बात का जिक्र भी मत करिएगा, वरना यही कहेंगे कि मैंने खुशी खुशी घर खरीदा है और तुम इसमें कीड़े निकाल रही हो। ऐसी बातों से वो चिढ़ जाते हैं। अगले दिन सलीम को कॉलेज जाना था। सवेरे अम्मी को लेकर घर चला गया। शाम को रफ़ी आए तो कहा, रात को गर्मी से मैं करवटें बदलता रहा हूँ, क्यों ना आज रात हम सहन में सो जाएं। रात चांदनी है और बाहर की खुशगवार और खंकी से नींद भी अच्छी आ जाएगी। अम्मा ने मना भी किया, वो ना माने। 3-4 चारपाइयाँ लगाकर बिस्तर बिछवा दिए। दरमियान वाली चारपाई पे मैं फरहान के साथ सो रही थी। रफ़ी के करीब होने के सबब आज सहन में भी खौफ महसूस नहीं हुआ, लेकिन अम्मा जी मना करती रही। रफ़ी बेटा छोटा है, अभी इसको लेकर खुले आसमान तले सोना सही नहीं है। रफ़ी ना माने। कहा, अम्मा जी, एक तो आपने वहम फैला रखे हैं, न जाने कौन से ज़माने की बातें करती हैं। जो भी डर है, रात को मुझे जगा देना। अब मुझे एक तरफ रफ़ी की चारपाई थी मेरे पास और दूसरी तरफ मेरी बराबरी पर अम्मा जी थी।
सच कहूँ तो पहली बार बेखौफी महसूस हुई और बराबर में रफ़ी सो रहे थे। डर लगा तो सोचा इनको जगा दूंगी। ठंडी मीठी हवा में नींद आंखों में उतरने लगी। फरहान भी सो रहा था। इसको लेकर मैंने हल्की सी चादर उड़ा दी। आधी रात को अचानक आंख खुली तो आसमान पर एक बड़ा सा परिंदा अपने ऊपर से गुजरते देखा। तभी जल्दी से आंखें बंद कर ली। आज कमरे से कोई आवाज़ न आई तो सहन में परिंदे ने खौफ ज़दा कर दिया। खुद को तसल्ली थी, इस तरफ रफ़ी और दूसरी जानिब अम्मा जी सो रही थी। कोई परिंदा होगा, रात को कुछ परिंदे उड़ते ही हैं तो डरने की क्या बात है। परिंदा तो गुजर गया, ये सोचकर खुद को तसल्ली दी और सो गई। सुबह सवेरे फरहान की हल्की सी चीख पर आंख खुल गई। रफ़ी तो बेखबर सो रहे थे। अम्मा जी उठकर अंदर नमाज़ पढ़ने चले गई। बच्चा एक चीख मारकर खामोश हो गया, जैसे वो नींद में डर गया। फरहान को उठा के कमरे में आ गई। अम्मा एक तरफ नमाज़ पढ़ रही थी, मैं बिस्तर पर लेटते ही सो गई। सुबह 8 बजे अम्मा जी ने जगाया, अब उठ जाओ, मैंने रफ़ी को नाश्ता दिया है, वो दफ्तर को निकल रहा है, तुम भी कुछ खा लो। फरहान रात भर नहीं खिसका और अभी तक सो रहा है। ये तो सुबह सवेरे अजानों के वक्त उठ जाता है। उठा था अम्मा जी, शायद नींद में डर गया था, दूध नहीं पिया, फिर से सो गया और तब से सो रहा है। देखो तो अम्मा ने चादर हटाई, कहीं बाहर की ठंडी हवा से बुखार ना हो गया हो। उन्होंने फरहान के माथे पे हाथ रखा, ये तो ठंडा यख हो रहा है मेरा बच्चा। उन्होंने उसको गोद में लिया। मेरे लाल का सर एक जानिब को लड़क गया। वो परेशान हो गई, बोली इसे जगाओ तो, दूध दो, शायद भूख से नकाहत हो रही है। रात से दूध नहीं पिया। हाँ अम्मा जी, रात जो पी कर सोया था इसके बाद नहीं पिया और ना रोया है। मैंने फरहान को बुलाया, हिलाया, जगाने की कोशिश की, मगर वो बेजान था। क्या जागना था इसने, मेरा दिल थक से रह गया। रफ़ी चले तो नहीं गए अम्मा, इनको रोकिए, इसे डॉक्टर के पास लिए चलते हैं, न जाने क्या हो गया मेरे बच्चे को। रफ़ी अभी गाड़ी स्टार्ट ही कर रहे थे कि भागकर अम्मा गईं और उनको रोका और उनको बताया कि फरहान की तबीयत ठीक नहीं है। वो जल्दी से अंदर आ गए, बच्चे को देखा और गोद में भर लिया। बोले कि आप दोनों गाड़ी में बैठे। डॉक्टर ने फरहान के कुर्ते के बटन खोले और चेक करने लगा। इसने कहा, मुझे अफसोस है, आपका बच्चा चंद घंटे कब आखिरी सांस ले चुका है। इसके गले पे ज़ख्म का हल्का सा निशान है। इसको ये चोट कैसे लगी, क्या आप बता सकते हैं? नहीं डॉक्टर साहब, पता नहीं है कैसे ज़ख्म आया है। रफ़ी ने कहा, क्योंकि मैं तो अब किसी बात का जवाब देने की हिम्मत ही खो चुकी थी। वो हमको घर ले जाने की बजाय अम्मी जान के घर ले आए। मेरा बच्चा तो हमसे बहुत दूर जा चुका था। इसके बाद मैंने दोबारा इस घर में कदम न रखा। आज तक ये बात समझ में नहीं आई कि फरहान को क्या हुआ। बेशक ज़िंदगी और मौत अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन फरहान मासूम की ज़िंदगी के चिराग गुल हो जाने की वजह क्या हुई? क्या सब कुछ एक वहम ही था या कोई गैर मामूली बात वाक़या हुई थी? ये खलिश आज तक मुझे तड़पाती है। 1 साल तक वो घर खाली पड़ा रहा, फिर रफ़ी ने इसको औने पौने बेच दिया। बहुत रोज़ के बाद इस मोहल्ले का एक शख्स रफ़ी को मिला। इसने बताया कि वो घर फिर से बराए फ़रोख्त है। ये भी बताया कि जब से बना है कई बार बिका है। इस घर में आज तक कोई टिक के नहीं रह पाया, क्योंकि इस मकान का मालिक, जिसने बड़ी चाहत से इसको बनवाया था, तकसीम के वक्त फसादात में इस इमारत में अपनी फैमिली समेत मारा गया था। शायद यही सबब है इस जगह किसी को सुख से रहना नसीब नहीं होता। रफ़ी ने यह बात मुझे ना बताई, बल्कि अम्मा जी को बताई तो वो बोली, देखा मैं ना कहती थी हर मकान की अपनी तारीख होती है। बाद में अम्मा जी ने ही मुझे इस मकान की तारीख से आगाह किया था।